Yes. So, Puneet, group discussion is basically you have to discuss a topic in between the group of people of 8 to 9, all right, and you will be given a particular topic to discuss over it. You can categorize the topic according to the team, according to yourself, that what possible aspect can be discussed in the topic. All right. So it is Okay. divided in three different parts: introduction, body, and conclusion. Now, introductory and conclusion part are very, very important because the candidate who is doing conclusion or who is doing intro, he is getting plus point. But if someone is taking initiative to, okay, this is topic, I'm going to introduce it. All right. Now, if we'll talk about intro part, introduction is your 5 to 6 important things which you need to be considered while you're giving your intro. Number one is regards, greetings to everyone, good afternoon, good morning, whatever it is. Then after your name and a name of your topic. All right. Number three comes any definition, meaning, or any generic view about the topic, whatever you have understood. Am I clear? Yes, Number ma'am. comes your opinion, your point of view, that what do you have understood, like with the topic, how you wish to start. आपका क्या opinion है? That you need to be started. And number five comes open the house for discussion. You have to invite all of your friends to take participate in that. Am I clear? Yes, ma'am. All right. And body is something when you will be giving 10 to 15 minutes to discuss over a topic and you need to give a relevant point one by one. Fine. Give relevant examples. You have to engage all others candidate as well. It's not like that you are only speaking and you're not giving chance to anybody else. All right. So you need to coordinate with the team also. But you need to be take opportunity for speak of yourself. Like if you are speaking yourself, तो आपको वो opportunity gather करनी है. मतलब कोई आपको chance नहीं देगा कि आप बोलो और. It's up to you that how you coordinate. Fine. Third comes to conclusion. Now conclusion you have to do on the behalf of everyone. On behalf of whole team, you need to be conclude the topic. So, okay, friends, on the behalf of everyone, I would like to take the initiate to conclude the topic. All right. Though we had a healthy discussion, strong discussion, we had discussed a very important points. तो आपने दो तीन जो points as a summary जो सबने discuss करे वो दो तीन points आपने quote करने हैं. Okay, ma'am, we have discussed this कि मेरे एक friend ने ये बोला, ठीक है? And agree, thank you. Clear? Yes, ma'am. All right. So this is how you to be. Ma'am, I want to ask something. Yes. So when the coordinator tell us to start the discussion, Hmm. suppose I am trying to start the discussion and another guy is trying to start the discussion, Hmm. and we both spoke at the same time, right? Hmm. So in that situation, what should I do? Should I cut him and keep talking or wait for him? What Uh, should I do? if you want to that you want to pursue it further first, so you may if you want to give chance to him, okay, please you can speak first, then I'll do my pointers. You can do according. But I think it's better that you're giving a positive and polite response to each other. I think one Okay, can ma'am. be if he strongly willing to that only I want to do intro. I think that you can give chance to. If you, all right, right. Oh, shall I give you the topic to be discussed? Yes, ma'am. Yes. Okay, please write down the topic. Technology changing face of education. Technology is changing face of education. Technology is changing face of education is the topic of discussion. Puneet, you will intro today. Like you will do intro. Okay. All right. And Nitesh, you Yes, will ma'am. do conclusion. Because we are less in number, that's why I'm giving you the name that who is going to be concluded. Abhinav, now today you will participate in the body move. आप हमेशा इंट्रो करते हो तो आपका वो रिस्पॉन्स वहां कम रहता है. पुनीत विल डू इंट्रो एंड नितेश विल डू कंक्लूजन. इट्स 1:15 बाय माय वॉच. शार्प 1:30 इसको वाइंड अप करते हैं बिकॉज वी आर ओनली द 4 पीपल. तो ओवर पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है. ऑल पुनीत प्लीज स्टार्ट द टॉपिक. One. Hello, friends. My name is Puneet Kumar. I hope all of you are doing well. Today's topic of discussion is technology is changing face of education.
In my opinion, this topic is very relevant to today's situation. I would like to start the discussion with some of my own views related to this topic. So, uh, there are some positives and negatives to including technology in education. The positives, I would say, students are exposed to new technologies. They'll get to learn new things, and when a teacher is explaining something, he can show the video of uh, that topic and explain the to- uh, topic in further details, so the student can learn it very easily. And negative would be like more screen times. Students would not be exposed to books anymore. They will try to search for the videos, and they will stuck to the screen of laptop or mobile phone, which can damage their visions. I mean, eyesight. So this is my view, and now I would like to open this discussion to everyone. So I please, I am agree please go with ahead. you, पुनीत। मेरा मानना है कि हम जब से टेक्नोलॉजी का यूज करने लगे हैं एजुकेशन में, तब से जो एजुकेशन है सबके लिए इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल हो गई है। पहले क्या होता था, मान और साथ में वो लेस टाइम भी अब लगता है। पहले क्या होता था कि अगर किसी बच्चे को मान लो ऑफलाइन क्लास करना है, तो उसको घर से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले निकलना पड़ता था, जिसमें उसको ट्रांसपोर्टेशन और अदरवाइज अदर टाइम भी बहुत इधर उधर लग जाता था। लेकिन अब वही ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से अब वही टाइम इसका बच जाता है, जो उसको मतलब पढ़ाई में और भी यूज कर सकता है उसको। मैं I completely agree with Nitesh, but according to my point of view, this technology that is increasing day by day, it's making our mental health and physical health also is declining. Like we can say mental and physically हम जो health है वो हमारी वो decline कर रही है, and मतलब हम अपने लैपटॉप के सामने या फिर अपने टैब के सामने बैठ के बस अपना जो भी हमारा कंटेंट है उसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी क्रिएटिविटी भी थोड़ी सी कम हो रही है। तो मेरा पॉइंट ये है इसको लेकर। Completely इसमें agree. Abhinav, इस, unmute yourself. इसमें Mic हम एक open चीज for. और जोड़ सकते हैं कि जैसे कि जब से टेक्नोलॉजी का यूज मतलब होने लगा है, तब से मतलब जो फैकल्टी हैं या एजुकेटर हैं, वो बच्चे को मतलब उसके सब्जेक्ट मैटर को बहुत आसान बना देते हैं। उसको और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी सब्जेक्ट को समझाने में उसको और आसानी होती है। बट एट द सेम टाइम हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि मान के चलें कि अगर कोई भी टॉपिक है, अगर मुझे समझना है या फिर कुछ भी है, तो आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, राइट? सो मैं स्विच कर सकता हूँ। सो जो ये स्विचिंग है ना, स्विच करने का जो पार्ट है, तो उससे मेरी जो चीज है वो ये चीज मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं मेरा जो ट्रस्ट है वो मैं बिल्ड नहीं कर पा रहा हूँ एजुकेटर्स के सामने, एजुकेटर्स के लिए। तभी मैं स्विच कर रहा हूँ, और एट द सेम टाइम मेरा जो पेशेंस लेवल है वो भी कहीं ना कहीं मतलब वो भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर रहा है। सो इसका भी एक काफी मतलब ड्रॉबैक है ये मैं भी चीज। इसी में एक चीज और ऐड करना, यही सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर बोलना चाह रहा था कि हम हमारे पास आज के डेट में जब से एजुकेशन में जब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, तो हमारे पास इतने ज़्यादा नंबर ऑफ रिसोर्सेज अभी अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि मनीष ने बोला। तो हम एक एक समय पे एक एक पॉइंट पे कहीं भी मतलब स्टिक नहीं कर पाते हैं। हम लोग कंटिन्यूअस स्विचिंग स्विचिंग करते रहते हैं, जिससे कि हम एक ही टॉपिक को नंबर ऑफ एजुकेटर से या नंबर ऑफ रिसोर्सेज से हम चाहते हैं कि उसे पढ़ें, जो कि हमारा टाइम किल करता है। तो ये इसका एक नेगेटिव नेगेटिव एस्पेक्ट कह सकते हैं। ये था मेरा पॉइंट। यस, आई एम अग्री विथ अभिनव। लेकिन मैं इसको ऐसा देखता हूँ कि मान लो जैसे पहले होता था कि अगर हम ऑफलाइन कोचिंग में जा रहे हैं या हमने किसी ऑफलाइन कुछ अपना मटेरियल जहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ अगर हमको मान लो किसी एक सब्जेक्ट का एक फैकल्टी अगर खराब मिल गया,
तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि हम उसको कहीं अलग से पढ़ सकें, या अगर अलग से पढ़ना है तो उसके लिए हमको दूसरे जगह फिर से अपना ज्वाइन करना होता था। लेकिन जब से ऑनलाइन एजुकेशन आ गया है, इसके वजह से हम स्टूडेंट को थोड़ा सिलेक्टिव होना पड़ेगा, और इसके वजह से उसको मतलब अदर जगह पर स्विच कर सकता है। Completely agree. Some teachers will get some teachers' behaviors will get lax, and they will try to reduce the burden on themselves. They will just say, "Students, I'll send you the PDF. You can note that down from there." So the teacher and student interaction is very low. Also, if a student is going on the internet searching for a topic, he or she doesn't know which source is reliable, which source is trusted. So they can get wrong information about that topic. And when they go to their teacher has already sent the PDF. Suppose the student did not understand that, what he or she would do in that situation. So that's a negative of implanting technology or smart technology into the education if the teacher is not willing to work with that to build upon it. I want to add one more point in this. It is also making us less intelligent. मतलब ये कि अगर टीचर ने बोल दिया कि आई एम प्रोवाइडिंग दी पीडीएफ्स एंड ऑल, सो वी कंप्लीटली रिलाई ऑन दोज पीडीएफ्स रादर देन कि अगर हम बुक्स पढ़ें, हम खुद से उनको लिखें, तो जो हमारे राइटिंग स्किल्स हैं या फिर जो भी हमारी जो सोचने की जो जो इमेजिनेशन जो पावर है, थिंकिंग पावर है, वो हमारी कहीं ना कहीं उससे मतलब वो भी इफेक्ट हो रही है। क्योंकि अगर मान के चलें कि अगर कुछ भी ऐसे वगैरह है या फिर कुछ भी एनीथिंग है, एक्स वाई जेड कुछ भी है, तो वो हम सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम तो कंप्लीटली पीडीएफ्स पे ही रिलाई कर रहे हैं ना। जो मैम ने हमारे या फिर जो भी हमारे प्रोफेसर है उन्होंने हमें दिया है, या फिर जो भी कंटेंट हमें दिया है, हम बुक्स में जाएंगे ही नहीं। हम प्रॉपर अगर हम उसको आर्टिकल को अगर हम पढ़ेंगे, हार्ड फॉर्मेट में हम पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा, हमारी वोकैबलरी भी इंप्रूव होगी उसको पढ़ने से। हम नए वर्ड्स को सर्च करेंगे, तो उससे भी एक काफी हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ता है ये चीज। इसके एक नेगेटिव एक्सपेक्ट में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि आज के डेट में कोई भी एजुकेशन चैनल आजकल कोई भी वीडियोस बना रहा है जिससे खुद को उतना नॉलेज जो होना चाहिए उस कंटेंट के लिए वो होता नहीं है। तो इसका भी एक ये बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि यू प्लीज कैरी ऑन। सेकेंडली अगर हम चलो बात यही करते हैं कि जैसे कि ऑल जैसे माय फ्रेंड नितेश इज सेइंग एंड पुनीत एंड ऑल, अब ऑनलाइन है या फिर कोई भी टेक्नोलॉजी है, कुछ भी है, ठीक है, एडवांसमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी में, तो उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं अपने टाइम में पढ़ा होगा, बुक्स से पढ़ा होगा या फिर कहीं अपने टीचर से पढ़ा होगा। तो एट द सेम टाइम कैरी फॉरवर्ड तो वही चीजें होती आ रही हैं, बट मीडियम चेंज हो रहा है। लेकिन रूट्स तो जो है हमारी वही है ना, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया होगा। तो वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसका जो जो रिलायबिलिटी है और जो स्टेबिलिटी है वो हमारी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप याद करें, आप जैसे हम हमारे फादर्स या फिर हमारी मदर्स वगैरह जो भी अपने टाइम में पढ़ते थे, तो उनको वो चीज़ें आज तक याद है। लेकिन अगर हमें कुछ याद करने को बोला जाएगा, कुछ ये है वो, तो शायद हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको रिकॉल करने में। तो ये काफ़ी बड़ा एक ड्रॉबैक है इस चीज़ का। यस, आई एम एग्री विथ मनीष। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो पहले कोई अगर गेट की एग्जाम की तैयारी करता था, तो बुक पढ़ पढ़ के उसको 2-3 साल भी लग सकते थे तैयारी हम्म, करने में। हम्म, लेकिन अब वही, अगर मान लो कोई ऑनलाइन कंटेंट अगर कहीं से देख रहा है, तो वही वो चीज 6 महीने में भी वही चीज वो कर ले रहा है। इससे अगर हम देखें तो इफिशियंसी तो इम्प्रूव हुई है, लेकिन उसको जल्दी में वो मतलब कवर करने के चक्कर में उसको मतलब वो लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन नहीं हो पाता है, ये भी हम्म, है। हम्म। I, I think, guys, we should move towards conclusion if everyone has said the points. यस, नहीं, Yes, yes. नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड। फ्रेंड, जैसा कि हमने देखा कि मतलब किसी भी चीज के कुछ
निगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। तो यहाँ अगर हम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी चेंजिंग फेस ऑफ एजुकेशन, अगर इसमें हम बात करें तो इसमें कुछ पॉजिटिव इसके इम्पैक्ट भी हैं और कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के आ जाने से एजुकेशन जो है सबके लिए इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल हो गई है, और इसकी वजह से हम लोग अपने अपने खुद की पेस पर जब चाहे तो हम इसको पढ़ सक मतलब एजुकेशन मतलब ले सकते हैं। और इसमें हमारे पास बहुत सी चॉइस भी होती हैं, एक से ज़्यादा फैकल्टी की। लेकिन इसके कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, जैसे कि इस टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमारे जो कंसंट्रेशन पावर है वो डिक्रीज हो गई है। स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो उतना नहीं हो पाता है। और इसकी वजह से एक और निगेटिव इम्पैक्ट है कि जो स्टूडेंट की है वो रिटेनिंग पावर भी है वो कम हो गई है। तो दैट्स ऑल अबाउट। डन। यस मैम। बस इतने ही पॉइंट है। हाँ मतलब पॉइंट्स तो और भी थे बट टाइम वाज द कंस्ट्रेंट, सो दैट्स व्हाई ज्यादा लेकिन भी तो 2 मिनट अभी और पड़े और 5 मिनट पहले आप लोगों ने मतलब कंफ्यूजन कर दिया। एंड दूसरी चीज क्या कहते हैं, नोबडी वाज आप टॉकिंग। हाँ, nobody was talking, you guys are looking for opportunity always कि हाँ मुझे मेरी टर्न आ जाए, मेरी टर्न आ जाए, बट आज तो टर्न ही टर्न थी, आप लोग बोल नहीं रहे थे। वाई? आई थिंक इट्स वेरी रेलिवेंट टॉपिक और इजी भी था। ये डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे तो सिमिलर सिमिलर टॉपिक हमने कितने क्वेश्चन मतलब जहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात होती है। ऑल राइट, ठीक है। पुनीत ने 1-2 बार पार्टिसिपेट किया, अभिनव ने भी 1-2 बार पार्टिसिपेट किया, मतलब 2-3 बार दोनों ने। ठीक है, पॉइंट्स ठीक थे। पुनीत का फर्स्ट दिए, नितेश और मनीष ने अच्छे पॉइंट्स दिए, काफी मतलब बार बार आप पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो फिर 10 मिनट की ही डिस्कशन थी, तो 10 मिनट में आप लोगों ने 5-5 6-6 बार पार्टिसिपेट किया, बट ठीक है, अच्छे पॉइंट्स थे। मनीष ने काफी अच्छे पॉइंट्स दिए कि हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है, या फिर हम बुक से ही पढ़ के हमने ये चीजें बनाई हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप की है बेसिकली, इसको बनाने वाले भी ह्यूमन बीइंग की है, एंड टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग द फेस ऑफ एजुकेशन। बेसिकली टॉपिक वाज दैट कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन का फेस कैसे चेंज किया, उसको कैसे डाइवर्ट किया, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, आई एग्री। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं एग्जाम्पल सही नहीं है। वो तब है जब टेक्नोलॉजी का हमारे हर चीज में यूज की अगर हम बात करें। नाउ ओनली वी हैव स्पेसिफाइड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, राइट? ठीक है, नेगेटिव्स हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन वी यूज्ड टू बी स्टडी फ्रॉम मोबाइल फोन लैपटॉप, वी यूज्ड टू बी डिस्ट्रैक्ट, वी गॉट वी गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वीडियोस, इधर ज्यादा ध्यान जाता है। अगर हम बुक्स में पढ़ते हैं तो बुक्स के अलावा हमारा कहीं ध्यान नहीं जाता। ठीक है, दैट्स गुड पॉइंट। अगर पॉजिटिव आप लोग बोल रहे हो कि इट हैव मेड अ लॉट ऑफ थिंग्स इजी, इट हैव एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, ऑप्शंस भी कई बार खराब करते हैं, जैसे उसका भी नेगेटिव है अपने आप में। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का एक अलग पार्ट है, बट जब आपके पास ओवर ऑप्शंस है या ऐसा कुछ है जो मतलब आपको फिक्स नहीं बनाता है, इट मींस योर माइंड सेटअप इज नॉट फिक्स। फिक्स इन द सेंस इट्स नॉट अबाउट कंस्ट्रेनिंग योर माइंड सेटअप, इट्स अबाउट टू कंसंट्रेट। ऑलराइट, ओके। अभी फेस ऑफ एजुकेशन को कैसे चेंज कर दिया, आप मॉरली भी इसको थोड़ा सा ले सकते हो। ठीक है, इन एथिकल मैनर में। How could it be? Like a student doesn't need actually teacher. They doesn't need any teacher basically. That's why they have just a lack of they are going schools. They don't want to go colleges. They want to study from home only because they know that they have resources. Yes. Nobody is willing to attend a lecture of professor because they know कि अगर वो मिस भी कर देंगे तो उन्हें मिल ही जाए. Nobody is willing to make a handwritten notes. They are not aware about the value of what is the handwriting or how to be handwritten, made notes and all that. Nobody is looking for notes. When we used to be studying colleges school like that, everybody is looking for कि मुझे notebook दे दो, मुझे notes बनाने हैं, मुझे ये करना है. Now this is not like this is not the kind of era में. Morally ये चीजें हैं. ऐसे phase of education change हुआ है. Education has become somewhere business as well. All right, somewhere it has been used in a unfair means that is not good. With change of education, phase of education कैसे change हुआ है कि
लेक्चर नहीं अटेंड करने हैं और वो लेक्चर ना अटेंड, फाइन्स है, वो तो आपका नेगेटिव है ही है क्या, बट आपकी क्रिएटिविटी कम हो गई है, आपका मतलब आपका थिंकिंग लेवल बहुत खत्म हो चुका है। पर जब आप एग्जामिनेशन देखने बैठते, एग्जामिनेशन ऑनलाइन नहीं होते, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होते भी हैं तो सिर्फ कुछ होते हैं, जो स्कूल कॉलेज के एग्जाम वो ऑनलाइन नहीं दोगे आप, वो एट द एंड आपने उसमें पेन पेपर में ही देने। फिर जब आप वो एग्जाम देने जाते हो फिर आपकी क्रिएटिविटी खत्म। स्पेसिफिकली द स्टूडेंट हु आर राइट स्टडिंग हिस्ट्री, पॉलिटी, दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट, उनका तो अपनी नॉलेज है ना, अगर उनको आता है तो वो लिख देंगे, अगर उनकी थिंकिंग नहीं है दे कैन नॉट राइट। इफ यू आर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, यू हैव फॉर्मूला कि मैंने फॉर्मूला लगाया, मैंने आंसर निकाल दिया। फिजिक्स के हो तो मैंने फॉर्मूला लगाया, निकाल दिया। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स, ठीक है, व्हाट अबाउट दोज थिंग्स जो ये मॉरली ये चीजें डिस्कस करनी थी। स्टूडेंट को टीचर की जरूरत नहीं है, लेकिन टीचर को तो फिर भी स्टूडेंट चाहिए, ऑनलाइन भी चाहिए, ऑफलाइन भी चाहिए। लेकिन हम स्टूडेंट को सॉरी टीचर को स्टूडेंट तभी मिलेंगे ना जब स्टूडेंट विलिंग होंगे। Nobody wants mentor, nobody wants teacher, because they know we have resources and we can access that, we can study from that. Nobody is willing to go to school, colleges. Attendance is, ये जो 75% attendance necessary की है, क्यों की है? Have you ever think of it? ये इसलिए की है क्योंकि बच्चा स्कूल के करिकुलम से दूर भाग रहा है, क्योंकि वो एंजॉय करके पढ़ना चाहता है, वो टीचर से नहीं पढ़ना चाहता, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, उसको लगता है कि स्कूल जाना वेस्टेज ऑफ टाइम। बट स्कूल इज समथिंग, इट्स अ टेम्पल, इट्स अ हब ऑफ एजुकेशन गाइस। एंड आई थिंक हम अपने चाइल्डहुड से, हम जब से पैदा हुए हम वहीं जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने जो है स्कूल का फेस भी चेंज कर दिया। बच्चों को लगता है, आपको पता है पेरेंट्स का ऐसा माइंड सेटअप हो गया है कि अगर हम स्कूल जाते हैं ना 4 दिन लगातार, तो पेरेंट्स बोलते हैं टाइम पास करने जा रहे हैं। पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पढ़ लेता है या नहीं है? यही बोलते हैं ना, Yes. यही बोलते हैं, यही होता है कॉलेज में भी। क्योंकि पहले पेरेंट्स को भी रियलाइजेशन था, क्योंकि स्टूडेंट को रियलाइजेशन था कि हाँ कॉलेज जाएंगे यार, लेक्चर अटेंड करना है, वो XYZ जो प्रोफेसर है वो अपना रिसर्च पेपर बताने वाले हैं या कुछ है, तो हमने नोट्स बनाने हैं। हमें पता है कि वो हमें नेट पे मिल जाएगा, तो अगर हम लगातार 5 दिन चले जाएंगे, पेरेंट्स को भी पता लग गया। मेंटालिटी देखो कितनी चेंज हुई है, ये फेस एजुकेशन ने चेंज किया कि नहीं, अगर ये कॉलेज जा रहा है मतलब ये आवारागर्दी करने वाला है, ये टाइम पास कर रहा है, ही इज नॉट स्टडिंग बेसिक, ही इज नॉट सीरियस। एंड दैट इज द मेंटालिटी ऑफ पीपल, द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स हैव बीन चेंज्ड। ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है कि ऐसे एजुकेशन का फेस चेंज होता है। एजुकेशन मेरे को लगता है कि इज नॉट रिस्पेक्टिंग, जितनी रिस्पेक्ट होनी चाहिए उतनी नहीं है। बिकॉज वो कहते हैं ना कि जो चीज मुफ्त में आपको मिल जाए उसकी कोई परवाह या इज्जत नहीं होती। Similar with the education, technology have made a lot of things easy, no doubt. Undoubtedly, positives are that we have a lot of options. The people who cannot afford to go school, they can study. But जो बच्चा स्कूल जाना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्या वो हर महीने का 500 रुपए का रिचार्ज करा के फोन अफोर्ड कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अब वो भी तो नेगेटिव है। जो बच्चा रेलवे स्टेशन पे बैठ के पढ़ रहा है, will he have the access of that basically? बुक्स हैं, आप एनजीओ में बुक्स डोनेट करके आते हो, लाइब्रेरीज में से बुक्स बच्चों को मिलती है, उनके पास एक्सेस होता है कि हाँ आप लाइब्रेरी से बुक पढ़ सकते हो, आप जब मर्जी बुक जा सकते हो, वहां पे जा सकते हो। और इवन मैक्सिमम लाइब्रेरी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही करते हैं, चाहे गवर्नमेंट है प्राइवेट, तो वो सोचते हैं कि नहीं टाइम इंक्रीज कर देते हैं सो दैट बच्चे पढ़ सकते। लेकिन फ्री इंटरनेट तो कोई नहीं देता मेरे को लगता है, उसके लिए तो हमें सब कुछ करना पड़ता है एक्सेस। और जो बच्चा जिसके पास एक्सेस ही नहीं है, जो दिन में काम कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग हम कर रहे हैं आजकल, डिस्टेंस एजुकेशन हम ले रहे हैं, कॉलेज यू सोल, प्राइवेट कैंडिडेट, कॉरेस्पॉन्डेंट, ये भी तभी आया क्योंकि टेक्नोलॉजी है। और इसने आधी एजुकेशन और वैल्यू और खत्म कर दी है। अब बच्चे कुछ भी करते हैं लेकिन पढ़ते नहीं है। Am I clear? तो मॉरली एथिकली ये चीजें भी आप हाईलाइट कर सकते हो। क्रिएटिविटी इज लेस, आई नो, वी आर नॉट टू इंटेलिजेंट, यस इट्स ट्रू। और टीचर्स का भी उसमें आता है कि हाँ टीचर्स भी टेक्नोलॉजी, नेट यूज कर रहे हैं, गूगल यूज कर रहे हैं, XYZ, बट स्टूडेंट्स भी वही चीज यूज कर रहे हैं। अगर अभी आपको राइटिंग पेपर दे दिया जाए कि GD टॉपिक और उसको फिर में लिखना है, बोलना नहीं लिखना है, कितना लिखोगे आप? नहीं लिख सकते।
कितने ग्रामेटिकल एरर करोगे, कितने सेंटेंस फॉर्मेशन गलत बनाओगे. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अ वर्बल कम्युनिकेशन एंड अ रिटन कम्युनिकेशन. ठीक है, वो जो राइटिंग, जो हमारी स्किल्स होती हैं, जो सबसे बेसिक स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, वो सब कुछ खराब हो रही है. ये सारी चीजें भी आप हाईलाइट कर सकते हो. एडमिशन फीस से लेके कॉलेज स्कूल जाने से लेके हर चीज. आई थिंक दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड, क्योंकि क्रिएटिविटी लेस है, हम ऑनलाइन सोर्स है, ये सारी चीजें हम सब लोग डिस्कस करते हैं. ये एथिकल वाला पार्ट कोई, बच्चों का बिहेवियर चेंज हो चुका है. स्टूडेंट्स हैव लॉट ऑफ एटीट्यूड, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ टोन, जस्ट बिकॉज वो सारा दिन एक वो स्क्रीन को भी देखते हैं. एक वो उसका इफेक्ट है. दूसरा ये है, दे हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग. ठीक है, अब वो आईज पे अफेक्ट कर रहा है, वो आपकी थिंकिंग पे, आपकी रैशनल थिंकिंग कैसे नैरो थिंकिंग बना रहा है. दैट इज ऑल्सो, जब बच्चा इतने बड़े स्कूल में होता है, असेंबली में होता है, एक्स्ट्रा करिकुलम उसको कुछ पता लगता है, दैट इज अ डिफरेंट, आई वुड से, सिनेरियो एंड डिफरेंट एनवायरनमेंट. ऑलराइट, वेयर एज आप कमरा बंद करके लैपटॉप में बैठ के पढ़ रहे हो, जो बच्चे, जिसके बच्चे के अंदर पेशेंस ही नहीं है, जो कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता, इसका मतलब वो पढ़ ही नहीं रहे, वो टेक्नोलॉजी के साथ भी टाइम पास कर रहा है और स्कूल उसने जाना नहीं है. समझ रहे हो? आई थिंक दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड. तो ये सारे पॉइंट्स आप हाईलाइट कर सकते हो. रेस्ट यू गाइस हैव डिस्कस्ड. अब अभी ना पुनीत का आज फर्स्ट जीडी था, दैट आई हैव अंडरस्टूड. पुनीत, ट्राई टू बी मोर पार्टिसिपेटिव फ्रॉम नेक्स्ट वीक. ठीक है, Okay. थोड़े ज्यादा Yes. से लाइक टाइम एंटर करना है. 5-6 टाइम इज आई थिंक बेस्ट टाइम, लाइक बेस्ट नंबर ऑफ टाइम बेसिकली. अभिनव, यू आल्सो, यू आर अटेंडिंग 3rd 4th जीडी विद मी पर्सनली. आई थिंक आपने विजेंद्र सर और शुभम मैम के साथ भी लगाया होगा. नहीं, आपके साथ ही थर्ड था. अच्छा, मेरे साथ ही है. ठीक है, Yes, ma'am. alright. तो थोड़ा सा आपको एनहांस करना है पार्टिसिपेशन. मतलब विदाउट एडिंग ऑन कि आप मनीष के पॉइंट में ऐड कर रहे हो, नितेश के, आप एक ना थोड़ा कुछ पर्सनल लाइक स्पेसिफिक पॉइंट भी दे सकते, कुछ अलग. उन लोगों ने जो बोला उससे कुछ रैशनल, आपने कुछ अलग क्रिटिकल थिंकिंग है आपकी कि हाँ उन्होंने ये हाईलाइट नहीं किया, शायद मैं कर सकता हूँ. Okay, क्लियर? Yes, ये ma'am. चीज आप दे सकते हो. चॉइस ऑफ वर्ड थोड़ी इनहेंस करो. मनीष, चॉइस ऑफ वर्ड पे आपको काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पॉइंटर्स अच्छे होते हैं, ठीक होते हैं पार्टिसिपेट में, लेकिन ये जो मैम उसको क्या कहते हैं, मतलब ऐसे, तो उन सारी चीजों में वो वर्ड नहीं पता, वो किसी को भी नहीं पता होगा ना. जब आप जीडी में बैठे होगे तो हम कैसे समझ पाएंगे आप किस बारे में बात कर रहे हो. गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. दैट थिंग नीड्स टू बी टेक केयर ऑफ. बाकी सब ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ठीक है. नितेश, आपका भी इम्प्रूव हुआ है, बट सेम चीज, चॉइस ऑफ वर्ड. ठीक है, और रिपीटिशन ऑफ वर्ड अवॉइड करने, सिनोनिम्स लर्न करो गाइस. सिनोनिम्स, पर्यायवाची जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. यस ठीक है, कि ताकि हमें एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट वर्ड्स हमें पता हो कि हम उनको यूज कर सकते Yes, ma'am. हैं. ऑलराइट, अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो कि आपका आई एम एग्री, आई एग्री होता है, आई एग्री, आई डिसएग्री, आई एम एग्री. मैंने कल भी किसी को बोला था बच्चे. तो ये चीजें थोड़ी सी चेकआउट करो कि आप कैसे डिलीवर कर रहे हो कंटेंट को. आप बायलिंगुअल हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हिंदी में बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है. इंग्लिश इज टोटली फाइन, बट स्पीक द कंटेंट वॉट एवर यू वॉन्ट टू एक्चुअली वॉन्ट टू डिलीवर. कई बार वो होता है कि जो हम डिलीवर नहीं करना चाहते वो पहुंच जाता है, जो हम बोलना चाहते हैं वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा है. ऑलराइट गाइस, आई Yes. थिंक दैट्स ऑल Yes, फॉर द टॉपिक. मतलब बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, इजी टॉपिक था, बट कैंडिडेट्स भी कम थे. बट yes, we can improve our participation at your own level. Yes, All ma'am. right, done. Thank you, ma'am. All right. Thank you, ma'am.